یہ میں پیچھے والے ساتھیوں سے کہوں گا بھائی اللہ اور اس کے نبی کی بات ہونے لگی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے. ہم دنیا داروں کی باتیں سنتے ہیں، دوسروں کے جلسوں میں جاتے ہیں، یہاں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے والی ہے. سارے بھائی تھوڑے سے آگے ہو جائیں اور دھیان سے بات سنیں. بھائی سب سے پہلے آپ سب کو میں ایک بات بتاتا چلوں، میں ایک دنیا دار آدمی تھا. اللہ نے مجھے اس کاج کے لیے قبول کیا کہ میں ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف کھڑا ہو سکوں. ٹھیک ہے، اور میں نے اس چیز پہ عہد کیا ہے کہ میں نظام مصطفیٰ کے لیے آخری سانس تک اپنا سب کچھ اس پہ لگا دوں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات بھائی جان، اب ہم سیاست میں آئے تو دنیا کی بات بھی کر لیں. بات یہ ہے کہ آج آپ لوگ جن کو دیکھتے ہیں کہ 10-10 کروڑ روپے لگا کر وہ ایم پی اے بنتے ہیں، وہ 1 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں بنتے. وہ آپ کا میرا خون نچوڑتے ہیں. جو 10 کروڑ روپے لگائے گا الیکشن میں، اس نے لاکھ روپے تنخواہ نہیں لینی میرے بھائی. انہوں نے آپ کے گلیوں کے پیسے کھانے ہیں، آپ کے بچوں کی نوکریاں کھانی ہیں، آپ کے حقوق کھانے ہیں. پھر وہ آپ کو اپنے ڈیرے بند کر کے ملیں گے، 5 سال آپ انہیں گالیاں دیں گے. تو بھائی اپنے ضمیر کو جگائیں، آپ اپنے اندر سے لوگوں کو لے کے آئے. میرے یہ بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے درمیان میں سے ہیں، یہ کوئی بڑے گھرانے سے نہیں ہے، یہ آقا دو جہان کے غلام ہیں اور اسلام کو بیچیں گے نہیں ہے. انشاءاللہ اسلام کی پاسداری کریں گے، اللہ اس کے نبی کے دین کو لے کے آئیں گے. اور جب نظام مصطفیٰ آئے گا تب آپ کے زندگی میں بدلاؤ آئے گا. تشریف رکھے ہمارے آج کے مہمان MMA 150 نہیں آئے گی. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہی سب سے بڑا نظام ہے، مگر اس کے لیے ہم ووٹ نہیں دیتے. دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بڑا دین ہے، اس کا نظام سب سے بڑا نظام ہے. بڑے لوگوں نے اس کے ریاست مدینہ کے نعرے لگائے اور ڈی جے پہ لڑکیوں کو نچایا. کیا وہ تبدیلی لا سکتے تھے؟ تو بھائی دین والے ہی تبدیلی لائیں گے. جو ریاست مدینہ کو سمجھتے ہیں وہی ریاست مدینہ بنائیں گے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ووٹ سے پہلا قدم اٹھائیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حق غالب آئے گا. بے شک حق کو آنے میں وقت لگتا ہے مگر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا میں اس سے معاملہ کروں گا. تو اپنے گمان بنا لو. نہ اسٹیبلشمنٹ بڑی ہے، نہ امریکہ بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرے نبی کا دین سب سے بڑا ہے. اور ہم اس دین کے نظام کو لا کے رہیں گے. اس کے لیے آپ سب کو، آپ نظری کو کرین کو ٹھپا لگانا پڑے گا.
आखिरी बात करूंगा सब भाइयों से। देखिए हम IMF के मखरूज हैं। ये मुल्क सारा जो चल रहा है ना वो सूद पे चल रहा है। जब तक हम अल्लाह और उसके नबी से जंग करेंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाहिद पार्टी है जिसमें किसी लीडर का नारा नहीं है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है। ठीक है ना, किसी जाति का नारा नहीं है, इसमें शाहब खान का नहीं है, इसमें गुजर साहब का नहीं है, इसमें अख्तर भाई का नहीं है, इसमें हमारे जो दूसरे एमएलए के 150 के कैंडिडेट का नहीं है, इसमें सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लम का नारा है। खुदा की कसम अगर हम इस्लाम को बेचे, अल्लाह दुनिया में भी हमें जलील करे और आखिरत में भी हमें जलील करे। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाए, आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाए, इन गुलामों की गुलामी से निकल जाए। मैं भी सैनी गुलामी में रहा हूँ, मैंने भी बड़ी पार्टियों के नारे लगाए हैं, मगर वल्लाह व खुदा ये लोग कुफरिया निजाम को लेके चल रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं अपने ईमान से, क्या सूद अल्लाह से जंग नहीं है? क्या अल्लाह के नबी से जंग नहीं है? तो जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे कोई जी सकता? तो मेरे भाई बात अलग है। अगर ये इतने हमदर्द है ना नवाज शरीफ, इमरान खान या सरदारी, इनके तो खरबों डॉलर के साथ बात पड़े हुए हैं, ये इतने आप लोगों से मुखलिस हैं, इनके कैंडिडेट आते हैं, इनसे इतना ही कह दें कि ये अपना आधे जायदाद दे दें, इस मुल्क को सूद से निकाल दें। अगर ये हमारे हमदर्द हैं, रहते तो ये महलों में है, महलों में रहते हैं और बात हमारी क्या करते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, सब नारे लगाएंगे, 5 साल हमें जलील करेंगे, क्योंकि निजाम ही हमारे नबी का नहीं है। जब तक सूद का निजाम नहीं खत्म होगा तो हम मुझे बताएं हम तरक्की कैसे करेंगे, अल्लाह से जंग कैसे जीतेंगे? तो भाई ये लोग सब झूठे हैं। नहीं तो इन कैंडिडेटों को है तो इनसे एक तमंचा के बात पकड़ के पूछे कि अपने लीडरों से पूछे कि बाहर पैसा क्या कर रहा है, क्या कि वो हमारी फलाह के लिए नहीं लग सकता, आया कि आधा पैसा देके वो कर्ज नहीं उतार सकते, क्या हमें ये सूद से नहीं निकाल सकते? सब झूठ बोलते हैं। ये जब तक निजाम रहेगा कुफरिया, तो आपको मैं बता दूं गरीब गरीब से गरीब होगा और अमीर अमीर से अमीर होगा। ये आज आपको महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ये इनकी याशियों की वजह से। खुदारा अपने दिमाग को खोले, अपने ज़मीर को देखें कि जो आप में से है, जो गरीब है, उसको लेके आए। हम क्या कहते हैं, गरीब कोई खड़ा हो जाए क्या इसने क्या लगना है, इसने कहां से पैसे लेना है? ठीक है, हम उन्हीं को वोट देंगे जो 10-10 करोड़ रुपए लगा के आएंगे, फिर हमारा खून निचोड़ेंगे। भाई जब किसी गरीब को लाओगे तो तुम्हारा दर्द समझेगा ना, जब आपके अंदर से होगा तो आपका दर्द समझेगा ना, गुलाम मुस्तफा होगा तो आपका दर्द समझेगा ना। जिसके निजाम के लिए आवाज उठा रहा हो तो निजाम सबसे बड़ा है, जब उस निजाम का गुलाम होगा तो फिर आपका दर्द समझेगा ना। इधर तो लोगों ने कारोबार बनाया है सिर्फ सियासत को, खुदारा भोग हो गया, आपने सबको देख लिया। अब अल्लाह और उसके नबी के सदके आप सिर्फ वोट दें ज़मीर का, बाकी अगर हम बेचे रोजे का शराब का हाथ होगा हमारा गिरबान होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सारी 76 साल हमने गुलामी में गुजारी है, ठीक है, ज़हनी गुलामी से हम बाहर निकले। अल्लाह के नबी वसल्लम का फरमान है कि हक को हक कहो और गलत को गलत कहो। हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम जितने कैंडिडेट आते हैं उनसे ये पूछें कि उनके लीडरों का खजाने बाहर क्यों भरे हुए, कि हम आज क्यों ये टूटी सड़कों पे और ये गटर उबल रहे हैं, क्यों हमारे हालात ऐसे हैं? इसके लिए हमें अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें ज़मीर का वोट देना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप इस दफा क्या हमेशा अल्लाह और उसके नबी पे वोट के नाम पे वोट दे दो। खुदा की कसम अगर निजाम कोई बदल सकता है तो निजाम मुस्तफा है, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। ये यकीन जो है हमें ताकतों पे उसको तोड़ दो, गुमान अल्लाह पे रखो कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे ताकतवर है, अल्लाह अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है, ये एजेंसियों से भी ज्यादा ताकतवर है। कोई किसी की हुकूमत नहीं बना सकता अगर हम गुमान सही कर ले। अल्लाह कुरान में फिर कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुमान के मामला करता हूं। आज हम गुमान कर ले कि अल्लाह सबसे ताकतवर है और अल्लाह का नबी का निजाम सबसे ताकतवर है।
खुदा की कसम एक कदम उठाएं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं 2000 लोगों का सिर्फ एक कबीला था, काई कबीला, अर्तुगल ड्रामा आपने देखा होगा। उन्होंने जब दीन का परचम उठाया, खाना बदोश लोग थे वो, ठीक है, उनकी 2 नस्लों ने कुर्बानियां दी, 650 साल उन्होंने 3 बड़े आजम पे हुकूमत की, इसलिए दीन का परचम उठा के। आज हमें ये कहते हैं कि मौलवी क्या करेंगे, कि मस्जिदों में क्या नाम है सियासत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 साल मस्जिद में सियासत की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी 10 क्या नाम है मस्जिद में सियासत की, हजरत उमर ने भी मस्जिद में की, हजरत उस्मान ने भी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने भी मस्जिद में सियासत की। जब मस्जिद से बाहर निकली सियासत तो फिर आपने देखा करबला में क्या हुआ। बात यह है कि आप ना यजीद के साथ लब्बैक 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 लब्बैक। अब आपने सोचना है कि आपने यजीदी काफिले के साथ खड़ा होना है या इमाम हुसैन के काफिले के साथ। अब मेरा यही आपसे अर्ज है, अपने ज़मीर को वोट दीजिएगा। हमारी शख्सियत कोई भी नहीं है, हम जिस नाम में कह रहे हैं ना कि निजाम हमें वो चाहिए, कोई भी लेके आए हमारे साथ आके बैठे, हम उसकी जूतियां सर पे रखें। वाह क्या बात है। मुस्तफा का चाहिए, हमें सीटों की लालच नहीं है, अल्लाह खुदा। हम तो इस वजह से चाहते हैं ईमानों में चाहेंगे ये तरमीमें ना करें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां ना करें, हमारे अम्मे से भी बंदे उधर जाके बैठे। हम निजाम मुस्तफा की आवाज उठाना चाहते हैं। आप सब भाई अपना पहला कदम उठाएं, इंशाल्लाह आपके पहले कदम का भी सवाब है और आपके आने वाली नस्लें भी सुधर जाएंगी। मैं ये लिख के देता हूँ, ये मैंने जो बातें की है ये अल्लाह की कसम है, अल्लाह को हाजिर ना जान कहता हूँ, मैंने दिल से, ये मैंने अंदर से बोली है कि मैं जानता हूँ आप लोगों का दर्द, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ 20 साल घूमता रहा, इनके साथ दीवानों में घूमता रहा, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मेरी दोस्तियां रही हैं। मैंने देखा कि ये आप लोगों के वोट का मजाक कैसे बना, ये किस तरह याशियां करते हैं आप लोगों के पैसों पे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वल्लाह खुदा अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं इस बात को 8 फरवरी के बाद भी लेके चलूंगा। आप ये ना समझना क्या जब वोट की वजह से आपसे कह रहे हैं, वल्लाह खुदा ये निजाम सबसे बड़ा आखिरी सांस तक इसके लिए मेहनत करेंगे। वाह क्या बात के लिए आप सबको निकलना पड़ेगा। जब तक निजाम मुस्तफा नहीं आया, आपके बच्चों की आपकी जिंदगी नहीं समझ सकती, ये लिख ले आप। तो सारे भाई ना सिर्फ सोचिएगा, मैं किसी वजह से नहीं, सिर्फ एक दफा अल्लाह और उसके नबी को हाजिर नाजिर करके सोचिएगा कि 76 साल जिनसे आपने धोखे खाए, जिन्होंने आपसे झूठ बोले, आज वो अमीर से अमीर होते गए, आज उनके खजाने भरते गए और हम आज भूख की पेट में पिस रहे हैं। इन्होंने 2 वक्त की रोटी मुश्किल इस तरह कर दी, गरीब के लिए सियासत ही खत्म कर दी कि कोई सियासत कर ही न सके। सियासत का नाम इतना बुरा कर दिया कि लोग सियासत को गाली देने लगे। तो भाई सियासत हमारे नबी ने भी की, सियासत खुलफाए राशिदीन ने भी की, इंशाअल्लाह वो इसी रहेगी कि वो निजाम मुस्तफा था, वो उसका फिर रिजल्ट क्या निकला, वो रियासत मदीना था। तो मेरे भाई एक दफा अल्लाह की रजा के लिए और उसके नबी के दीन के लिए एक दफा अपने ज़मीर से पूछो और सोचो कि इन लोगों ने क्या किया। ये कितने मालदार हो गए मगर ये हमें सूद से ना निकाल सके, ये अल्लाह की जंग से ना हमें निकाल सके। तो इंशाल्लाह भाई हमारा मंशूर है ये, इंशाल्लाह इस काज पे काम करेंगे, हक अल्लाह जरूर लाएगा, क्योंकि हमारा यकीन है कि अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं और अल्लाह के नबी के निजाम से ताकतवर कोई नहीं। जब वो आएगा ये सब खत्म हो जाएंगे। उसके लिए अपना हिस्सा डालें। 8 फरवरी को आपका वोट आपका हिस्सा है, ये आपकी शहादत है और इस शहादत को किसी चोर लुटेरे के नाम पे मत दें। खुदारा आपने वोट तो देना ही है, मगर अल्लाह के यहाँ और उसके नबी के सामने शुक्र होने के लिए वोट, कि क़यामत के रोज हम उनको बता सके कि हमने आपके नाम पे वोट दिया था। अगर हम धोखा करें तो दुनिया में भी ज़लील और राख। अस्सलाम वालेकुम।